what is a provision, what is the accounting treatment of a provision, and how it is carried out as an adjustment into the financial statements, which are two of them, the famously known income statement and the statement of financial position. We discussed the first scenario in which a provision can arise. Now we have two other scenarios. The first scenario was, let me just repeat that for you all. It was the first year of trading. Okay. And scenario 2 and 3 were the following years of trading. Following means कोई भी ऐसा साल जो कि पहले साल के अलावा है, that can be year 2, year 3, year 4, even year 10. Following years of trading. Now, we all know what accounting treatment went through first year of trading. We are now left with year 2 and year 3, the scenario 2 and scenario 3. Let's have a look on it, that what happens in these particular years or scenarios. I'll write down an example and solve that example on the board. And uske baad you'll be having a brief overview about how provision is treated in the scenario 2 and scenario 3. Let's say, for example, there is a business which has trade receivables which are worth $1,55,000. It says bad debts to be written off. Written off का क्या मतलब है कि अभी वो हमने अपने receivables में से minus करने हैं. They are yet to be deducted. They are yet to be decreased out of your trade receivables. Let's say the amount of trade receivables is $5,000. The business decided to maintain the provision at 1% of remaining receivables. Now, what is the difference over here as compared to the scenario 1? In the scenario 1, we particularly had no provisional balance in that particular year. But over here, we have a balance. Now, there are 4 main parts of this question. The first part shows the total amount of trade receivables. That is 1,55,000 a year. Bad debts to be written off. What do we mean by to be written off? It means these are yet to be deducted from your trade receivables to derive at the figure of net receivables. Provision at 1% of remaining receivables. Remaining receivables का क्या मतलब है कि हमने provision को maintain करना है कितनी percentage के ऊपर 1% पे. Provision for doubtful debts 1st January 2010. मतलब पिछले साल जो हमारी provision आई थी, that was $1,300. Right. Now, first of all, as we all know, क्या requirement आ सकती है? वो आपको कह सकता है prepare a bad debts account.
Now, as we all know, what is the double entry of the bad debts? We discussed it 2 lessons before. It's bad debts account debit with $5,000 to, let's say the customer's name was Ahmed. So Ahmed as a receivable would be credited with 5,000. Now, what if we prepare a ledger account? It would be something like this. This is the bad debts T account. Bad debts account debit 5,000 because of Ahmed. The ledger would be closed with 5,000, whereas this figure would be transferred to the income statement. So this is the first requirement which can be assessed in scenario 2. We all know we had been going through the same example in the scenario 1 as well. Let's move on to the second requirement that can be assessed in such a question. After bad debts, the main part now, which actually distinguishes this scenario 2 with the scenario 1, that is the calculation of the provision for doubtful debts. It might say that calculate the provision for doubtful debts and prepare its ledger account. Class, we learned yesterday that provision is calculated as a percentage on the remaining receivables. It is evident in the question that our receivables are worth $1,55,000 and the bad debts for this particular year which were to be written off were 5,000. There is one thing that I need to elaborate over here. Sometimes in some questions the statement can be like bad debts written off. रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है कि वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो उस सूरत में हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स में से वो बैड डेट्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने साल के मिड में समवेयर इन बिटवीन द ईयर हमने वो डिक्रीज कर दिए थे. बट व्हाट इज रिटन ओवर हियर? बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ. टू बी रिटन ऑफ का क्या मतलब है कि वो अभी माइनस होने हैं, दे आर येट टू बी डिक्रीज्ड. तो आफ्टर वी डिक्रीज देम उनका जो फिगर आया दैट इज 1,50,000. 1,50,000 के ऊपर अगर हम 1% अप्लाई करें तो द फिगर दैट वी हैव इज 1,500. तो इस साल की प्रोविजन कितनी आई है? इस साल की प्रोविजन आई है $1,500. यहां तक हमने सीखा था in scenario 1. But what particularly happens in years that are followed after the first year of trading? प्रोविजन की एंट्री पास करने के लिए हम करते हैं एक कंपैरिजन. What do? We do a comparison. Comparison between last year's provision, okay, and between the current year's provision. एक कंपैरिजन होता है पिछले साल की प्रोविजन का इस साल की प्रोविजन के साथ. नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द रूल्स दैट कंपैरिजन के रिजल्ट में जो भी फिगर्स आते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है. रिमेंबर, अगर हमारी इस साल की जो प्रोविजन है वो पिछले साल की प्रोविजन के निस्बतन उसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई है तो रिमेंबर इट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस. तो इन शॉर्ट, अगर हर साल में आपकी प्रोविजन इंक्रीज होती जा रही है तो इट वुड बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस. व्हाट इफ ऑन द कॉन्ट्ररी योर प्रोविजन ऑफ द लास्ट ईयर इज डिक्रीज्ड? तो इट वुड बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम. मतलब अगर किसी भी साल में
आपकी प्रोविजन पिछले साल की प्रोविजन की निस्बतन डिक्रीज हो गई है, तो दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम। इसको गौर से देख लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, रजिस्टर्स पे लिख लें, व्हाटसोएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल कि इस एग्जांपल में क्या हुआ। वी कैन सी कि लास्ट ईयर की जो प्रोविजन थी, इट्स गिवन ओवर हियर। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2010, राइट? वो कहता है कि हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 1 जनवरी 2010, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर वाज $1300, मतलब लास्ट ईयर की जो प्रोविजन थी दैट वाज 1300। करंट ईयर की प्रोविजन हमने अभी फाइंड की है एंड दैट इज 1500। दैट मींस कि ये प्रोविजन 200 से इंक्रीज हो गई है, और जब भी प्रोविजन इंक्रीज होती है तो वो एक एक्सपेंस के तौर पे चार्ज की जाती है। दैट मींस हम जो अपनी प्रोविजन का डबल एंट्री चार्ज करेंगे वो कंपैरेटिव अमाउंट के साथ चार्ज करेंगे, एंड दैट इज 200। क्या एंट्री थी? आई टोल्ड यू ऑल यस्टरडे, इट इज इनकम स्टेटमेंट डेबिट with 200 to provision for doubtful debts credit with 200. This is your double entry that would be passed for this particular year. Now, as far as its T account is concerned, उसमें भी थोड़ा सा change है as compared to the year one of trading. I would again repeat this point over here. Scenario one, the first year of trading, उसमें क्या होता था? हमारे पास कोई प्रोविजन का पुराना बैलेंस नहीं था होता। क्यों नहीं था होता? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। यहां पर चूंकि वी आर इन अ फॉलोइंग ईयर ऑफ ट्रेडिंग, मतलब दूसरे, तीसरे या चौथे साल में है, तो वी ऑलरेडी हैड अ प्रोविजन। प्रोविजन का रूल ये है कि जब वो एक दफा क्रिएट हो गई है तो वो अगले सालों में कंपैरिजन के बाद चार्ज की जाएगी, राइट? वी हैव डन द कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमारे पास रिजल्ट आया, प्रोविजन वाज इंक्रीज बाय $200, और उसकी हमने डबल एंट्री एक पोस्ट कर दी है। अब इसका लेजर अकाउंट कैसे होगा? लेट मी टेल यू दैट। Just like all T accounts or ledger accounts, provision for doubtful debts. अब सिनेरियो वन से इसका डिफरेंस क्या है? सिनेरियो वन में अगर आप अपना वीडियो लेसन रिव्यू करते हैं या यू हैव योर बेसिक नॉलेज ऑन लेजर्स, वो पहला साल था ट्रेडिंग का, and in the first year of trading we don't have any brought on balance, but this is one of the following year of trading, और इसमें हमारे पास बैलेंस है, और वो बैलेंस कितना है? दैट इज $1300। और इस साल जो हमने एंट्री पास की है उसमें हमने प्रोविजन को क्रेडिट किया है 200 से बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो अल्टीमेटली जब हम इसका सीडी बैलेंस निकालेंगे तो वो इस साल की प्रोविजन के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 1500। देयर यू गो। This is the preparation of the provision for doubtful debts ledger account. This is how we tackle the second requirement. I hope it's clear to everyone. कोई queries होंगी तो वो हम at the end of the lesson देखेंगे. Now let's move towards the final requirement in such a scenario, that is the extracts that are prepared inside an income statement and the statement of financial position. Let's have a look on them. As we all know, income statement, हमारे पास दो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है? एक्सपेंसेस में जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे
तो अपने बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, और बैड डेट्स हमारे इस साल कितने थे? दे वर 5000। और एक और एक्सपेंस जो कि प्रोविजन की सूरत में आया, व्हाट इज दैट? दैट इज इंक्रीज इन प्रोविजन। अब बेटा प्रोविजन कितने से इंक्रीज हुई है इस साल? इस साल प्रोविजन इंक्रीज हुई थी $200 से, कंपैरेटिव अमाउंट। रिमेंबर दिस थिंग, इनकम स्टेटमेंट में व्हेन एवर वी आर इन द फॉलोइंग ईयर्स, नॉट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग में प्रोविजन की टोटल अमाउंट एज एन एक्सपेंस चार्ज की जाती है। लेकिन इन द फॉलोइंग ईयर्स, चूंकि हमने प्रोविजन की पहले एक अमाउंट चार्ज कर दी होती है, तो उसके एक्सेस में जितनी अमाउंट आती है उस साल में, वो चार्ज की जाती है। और वो कितनी आई थी? दैट वाज 200। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट, जहां पर ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की जाती है। द सेकेंड पार्ट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में, एज वी ऑल नो, ये एडजस्टमेंट रिलेटेड है करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के, ठीक है। I'll repeat the procedure that we performed yesterday. Trade receivables that were worth $1,55,000. इसके अंदर से हम सबसे पहले माइनस करेंगे the bad debts that were to be written off, and they were 5,000. So that means the net receivables for this particular year were 1,50,000. इन नेट रिसीवेबल्स में से हम डिडक्ट करते हैं अपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस पर्टिकुलर ईयर में कितना आया था? इट वाज 1500। तो दैट मींस इस साल जो हमारे पास रिसीवेबल्स की अमाउंट बची है, दैट इज $1,48,500. This is the complete treatment of any scenario that is occurring up in the following years of a business when it is involved in training. Now class, we are left with one more scenario that can occur, और वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। वो सिनेरियो किस तरह है? वो सिनेरियो इस तरह है कि देयर आर पर्टिकुलर टाइम्स, जैसे कि यहां पर हमने देखा, जहां पर प्रोविजन 1300 की अमाउंट से 1500 पे इंक्रीज होगी थी बाय 200। नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, यही प्रोविजन आपकी डिक्रीज भी हो सकती है, राइट? Now I'll be amending this example, और उसके बाद देखते हैं कि अगर प्रोविजन डिक्रीज होता है तो उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। I'll just change one thing in this example, and that is the balance of the provision. Let's say your balance was 1800. Okay. Same question, but with a different provisional balance. ठीक है? वही सारी ट्रीटमेंट होगी, उसी तरह बैड डेट्स पास होंगे। चेंजेस कहां पर आएंगे? In the calculation of provision. As we can see कि इस बैलेंस के साथ अगर हम एक कंपैरिजन करें, तो जो हमारी लास्ट ईयर की प्रोविजन है, दैट इज $1,800, एंड एज फार एज द कैलकुलेशन इज कंसर्न, हमने पिछले सिनेरियो में इसकी कैलकुलेशन की थी, द करंट ईयर प्रोविजन was 1500. तो इन सच अ सिनेरियो वी कैन सी कि हमारी प्रोविजन डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है
कितने से डिक्रीज हुई है? बाय $300. दैट मीन्स कि this time this income would be recorded, this provision would be recorded as an income. अब इस इनकम की ट्रीटमेंट को सबसे पहले हमने डबल एंट्री की सूरत में परफॉर्म करना है. सो रिमेंबर वन थिंग क्लास, अगर किसी भी सिनेरियो में आपकी प्रोविजन इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती है तो आपकी जो डबल एंट्री है प्रोविजन की वो ऑपोजिट पास की जाती है. And what do we mean by the opposite provision over here, the opposite double entry over here? कि प्रोविजन नॉर्मली क्रेडिट होती है लेकिन इस सिनेरियो में हम प्रोविजन को डेबिट करेंगे. तो एंट्री वुड बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से? 300 से. एंड वेयर एज इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट इनकम के साथ 300. This is the first change that is recorded in a scenario wherever provision has been decreased. अब इसको हम T अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? It's very simple. प्रोविजन का अगर हम T अकाउंट बनाएं, provision for DD stands for doubtful debts. इसका सबसे पहले ब्रॉड ऑन बैलेंस. इस दफा द ब्रॉड ऑन बैलेंस ऑब्वियसली इट वाज अ चेंज्ड बैलेंस. वो कितना था? 1800, राइट? और प्रोविजन इस बार चूंकि डिक्रीज हुई है उसकी वजह से प्रोविजन क्या हुई है? डेबिट 300 बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट. एंड अगेन अल्टीमेटली हमारा सीडी बैलेंस कितना आ गया? हमारा सीडी बैलेंस 1500 आ गया. This is how a provisional T account looks like whenever we prepare a provision for doubtful debts account when the provision is decreased. अब इसके हम extracts देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हम इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे. इनकम स्टेटमेंट अब दो सेक्शंस में इसकी रिकॉर्डिंग होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपेंसेस में लिखें. क्या लिखेंगे एक्सपेंसेस में? आवर बैड डेट्स. वो कितने थे? वो नेचुरली हमारे 5000 थे. अब एक एडजस्टमेंट होगी अदर इनकम में. वाई सो? बिकॉज इस साल प्रोविजन डिक्रीज हुई थी और जब भी प्रोविजन डिक्रीज होती है उसको एज अदर इनकम रिकॉर्ड किया जाता है. एंड कितनी है अदर इनकम हमारी? डिक्रीज इन प्रोविजन. वो कितने से कम हुई थी? इट इज एविडेंट ओवर हियर. वो 300 से कम हुई थी प्रोविजन. तो ये 300 एज इन इनकम रिकॉर्ड कर दिया जाएगा इनटू द इनकम स्टेटमेंट. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस व्हिच वी हैव while recording provision as a decrease in financial adjustments. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वहां पर ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देयर वोंट बी एनी पर्टिकुलर चेंज. उसी तरह हमारे जो करंट एसेट्स का पोर्शन है, द करंट एसेट्स पोर्शन रिकॉर्ड्स आवर ट्रेड रिसीवेबल्स. सबसे पहले विल रिकॉर्ड आवर नेट रिसीवेबल्स जो कि आते हैं बैड डेट्स को माइनस करने के बाद. देवर 1,50,000 आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेट्स. और इसमें से हम रिड्यूस करेंगे अपने प्रोविजन का इस साल का बैलेंस. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट वाज 1500 फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर और हमारे बैड डेट्स बचे हैं 1,48,500. दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स whenever we are in the following years of trading. Following years of trading में
As I told you all, there are two results. Either your provision is increased. अगर वो increase होती है तो आपका जो provisional recording है that would be recorded as an expense. अगर provision decrease होती है तो it would be recorded as an income और उसकी treatments भी हमने यहाँ पर देख ली हैं. एक example को हमने amend करके 2 दफा देखा. Now one last thing is left that is completely relevant to the aging receivables. ये examiner कभी-कभी इस तरह की एक चीज assess करता है और वो चीज क्या है कि मैं आपको अभी यहां पर इस एग्जांपल में बताता हूं कि इधर हमारे पास 1% है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं अपने रिसीवेबल्स पे. किस लिए? प्रोविजन को फाइंड करने के लिए. देयर आर ऑफन क्वेश्चंस वेयर वी हैव a different provisional percentage for our different categories of trade receivables. Let's have a look वो किस तरह से होती हैं. It's famously known as aging receivables. Now, we all know that provision क्यों चार्ज की जाती है. प्रोविजन हम इसलिए चार्ज करते हैं कि देयर इज अ टेंडेंसी कि कस्टमर्स माइट नॉट पे बैक द अमाउंट दैट इज ड्यू टू देम फॉर द बिजनेस. अब whenever there is a tendency that bad debts might occur, इसलिए हम प्रोविजन को चार्ज करते हैं. There are some accounting principles जो कि इस चीज को बिलीव करते हैं कि अगर एक रिसीवेबल पुराना होता जा रहा है तो असूलन उसकी प्रोविजन की परसेंटेज भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो रिसीवेबल ज्यादा पुराने होते हैं इट इज रिस्कियर दैट दे माइट नॉट पे बैक अस द अमाउंट. अब इस पर्पस के लिए इन सम एग्जांपल्स लेट्स से एक कैटेगरी होती है रिसीवेबल्स की. लेट्स से देयर आर सम रिसीवेबल्स worth $50,000 which are 3 months old. इनके ऊपर शायद हम 1% प्रोविजन ही चार्ज करें. ठीक है. Then there are some receivables which are worth 30,000 which are 6 months old. इनके ऊपर शायद हम 5% चार्ज करें. There might be some receivables which are worth $20,000 which are 10 months old और इसके ऊपर प्रोविजन जो हम चार्ज करेंगे वो 10% होगी. Now what is happening over here? Aging receivables. जैसे जैसे रिसीवेबल पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी प्रोविजन की अमाउंट भी इंक्रीज होती जा रही है. Why so? Because जब भी हमारा रिसीवेबल पुराना होगा उसका रिस्क बढ़ता जाएगा. अब देखें ना, ये कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें 10 महीने तक कोई पेमेंट ही नहीं की. इसका मतलब है काफी चांसेस नजर आ रहे हैं कि शायद ये हमें पेमेंट ना करें. दैट इज व्हाई वी हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ प्रोविजन ओवर हियर. तो यहां पर प्रोविजन कैलकुलेट कैसे होगी? 50,000 का 1% वुड बी 500. 30,000 का 5% would be 1,500 and 20,000 का 10% would be 2,000. तो हमारी प्रोविजन इस बिजनेस की इस साल की कितनी आएगी? 4,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो ये एक ऐसी टेक्निक है वेयर वी यूज अ डिफरेंट परसेंटेज फॉर आवर रिसीवेबल्स व्हिच आर एजिंग विद टाइम. Class, this is all about bad debts and provision for doubtful debts. I hope you're all convenient with the basic concepts and the elaborative examples of these topics. In 5 minutes time, I'll be sitting here for your queries and questions. Please prepare them and take a 5-minute break and I'll be answering them shortly. Thank you very much.